Good morning, students. Today we'll start question number 16 of the same assignment. And question number 16 has six parts: A, B, C, D, E, and F. And each part further has many parts. Let's start from question number 16A. In part A of question number 16A, we have to find out 1 by 4th of 20. There are two methods to find out the 1 by 4th of 20. 1 by 4th of 20 means quarter of 20. Okay. And I think, you know that when we divide a number or a part into four equal parts, then each equal part is quarter of that first part. Okay. That we have divided into four equal parts. Let's start with the multiplication method. In the course of time, we'll also discuss about the second method to find the quarter of a number. Let's start with multiplication method. 1 by 4th of 20 is equal to 1 by 4th of 1 by 4th into 20. ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको 1 by 4 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, या दूसरे शब्दों में कहो आपको 20 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया और हमारा आंसर क्या आ गया, 5। 1 by 4 of 20 is 5. Next is 1 by 5 of 40. It means 1 by 5 into 40, and we have to divide 40 by 5. 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40. Okay, its answer is 8. And I hope you will complete this 1 by 6 of 24 by yourself. Move on to the right hand side. Here we have 1 by 8 of 32, and 1 by 8 of 32 means 1 by 8 of into 32, and we have to divide 32 by 8. 8 1 are 8, 8 4 are 32, and its answer is 4. 1 by 4 of 1 by 8 of 32 is 4. Then 1 by 3 of 21 is 1 by 4 into 1 by 3 into 21. We have to divide 21 by 3. 3 1 are 3, 3 7 are 21, and its answer will be 7. And you have to complete 6 by yourself. Move on to the question 16b. Here it is clearly written, if 1 dozen is equal to 12, then आपको 1 डजन दिया गया 12, तो आपको कुछ फ्रैक्शन नीचे दी गई हैं कि वो डजन का क्या कौन सा पार्ट है। ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे क्या लिखा है, 1 by 2 ऑफ अ डजन, यानी कि हाफ ऑफ अ डजन। आपको पता है डजन में 12 ऑब्जेक्ट होते हैं, और डजन का हाफ कितना होता है, 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। या आप इसको सिंपली कर सकते हो, कैसे बता देता हूँ आपको मैं अभी। जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे, 1 हाफ ऑफ अ डजन इज इक्वल टू है हाफ इंटू 12, एंड यू हैव टू डिवाइड 12 by 2. 2 1 are 2, 2 6 are 12, and its answer is 6. Half of a dozen is 6. Okay. Next, 3 by 4 of a dozen means 3 by 4 into 12, and we have to divide 12 by 2 and then multiply the answer with 3. Let's start. 4 1s are 4, 4 3s are 12, and now we have to multiply
3/3. 3 into 3 is equal to 9, and its answer is 9. Okay, move on to the right hand side of the same question. 1/4 of a dozen, 2/3 of a dozen. I hope you will complete these two questions by yourself. Move on to the question number C of 16. If 1 hour is equal to 60 minutes, then आपको बताया गया है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आपको 1/3 ऑफ एन आवर्स निकालना है। बहुत सिंपल है। ऑफ की जगह पे आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाइए, जैसा हम पहले करते आए हैं। 1/3 ऑफ एन आवर मीन्स 1/3 इंटू number of minutes an hour has is 60. You have to you have to divide 60 by 3, and you know 3 1s are 3, 3 2s are 6, and 3 1s are 3, 3 0s are 0. Okay, it means 23 is 60. Okay, 3 के टेबल में 60 20 पे आएगा। 1/3 of an hour is 20 minutes. Not only 20, but you have to write 20 minutes. Okay, here you have to write 20 minutes. And second part of the same question, 4/10 of an hour is equal to 4/10 into 60. We have to divide 60 by 10. We can cancel 0 with 0, and then we have to multiply by 4 into 6 is equal to 24. That means its answer is 24 minutes. 24 minutes. Okay, now I hope you will complete rest of the part by yourself. Next is part D of 16. Here 1 rupees is equal to 100 पैसे is given. आपको बताया गया 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 1/10 ऑफ 1 रुपीज़ क्या होगा? तो आपको क्या करना है, आंसर आपके सारे पैसे में आएंगे, तो इसलिए आपको क्या करना है, जहाँ भी 1 रुपी लिखा है उसको 100 पैसे में कन्वर्ट करके एक फर्दर कैलकुलेशन करनी है। जैसे आपको डी के फर्स्ट पार्ट में जैसा कि आप देख पा रहे हो, 1/10 ऑफ ₹1 लिखा है, तो ₹1 की जगह पे आपको 100 लगाना है, 100 पैसे। 1/10 इंटू, हम ₹1 को 100 पैसे में चेंज कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, 1/10 इंटू 100, यानी कि 10 को 100 को 10 से डिवाइड करना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, एंड 1 10s are 10। आंसर आएगा आपके पास 10 पैसे। आंसर क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, 10 पैसे। ओके, 10 पैसे। नेक्स्ट, 2/5 ऑफ ₹2, 2/5 ऑफ ₹2, 2/5 of ₹2. You have to further convert 2 rupees into paise, which will be 200 paise, and you have to write 2/5 into 200 p means 200 paise, and then we have to divide 200 by 5। 200 को 5 से डिवाइड करना है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले, क्योंकि 2 के पीछे 2 0 हैं, अब 2 को 5 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप 20 को ले लीजिए। पहले 20 को 5 से डिवाइड करके देखिए। 5 1s are 5, 5 4s are 20।
अब ज़ीरो है तो ज़ीरो को काट के दो, उसके पीछे भी ज़ीरो लगा दो तो 40 आ जाएगा। यानी कि आपके पास दो यूनिट, यहाँ पे दो नंबर बचे हैं 2 और 40 और आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 80 पी, यानी कि 80 पैसे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 2/5 ऑफ ₹2 इज़ 80 पैसे। ठीक है, एंड इट्स राइट हैंड साइड 1/5 ऑफ ₹1 एंड 3/10 ऑफ ₹5। आपको यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है जो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, आपने 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 100 को 5 से डिवाइड कर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3/10 ऑफ ₹5। ₹5 को आपने 500 पैसे में कन्वर्ट कर देना है। ओके, और 10 से डिवाइड कर दोगे, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको ऐसे लिखोगे आप 3/10 इंटू ₹5 की जगह पे 500 पैसे आ जाएंगे। आपने 10 से 500 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। बाकी आपके पास रिजल्ट है 3 5 का 15 एंड 1 0 150। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास 16 का पार्ट ई। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देन 1/5 ऑफ 1 kg। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1/5 ऑफ 1 kg को आपने 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। तो आपको क्या करना है, 1000 को 5 से डिवाइड कर देना है। पहले आपको, अब 10 को इजीली डिवाइड कर सकते हो 5 से, 5 1 + 5 5 2 10, और पीछे कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो, यानी कि 200 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा ई के पार्ट फर्स्ट का। ठीक है, अब ई का हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, बाकी आप खुद करना। 2/5 ऑफ 500 ग्राम, यहाँ पे आपको कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको ग्राम में दिया है। आपको सिर्फ क्या करना है, 2/5 इंटू 500 लिखना है, और 5 को 500 से डिवाइड कर देना है। 5 1 ज़ा 5 एंड 500 ज़ा 500, या आप ये भी कर सकते हो। यहाँ से देखिए 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, और कितनी ज़ीरो है पीछे, 2, तो 2 ज़ीरो इसके पीछे आ जाएंगी, और 200 ज़ा 200, यानी कि आपके पास आंसर आएगा 200 ग्राम। यहाँ पे आप लिख देंगे आंसर, और बाकी के जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो आप खुद ही कीजिए। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट में मुझे आप रिप्लाई करना। ठीक है, मैं डेफिनेटली सॉल्यूशन लेके आऊँगा आपके लिए। और लास्ट हमारे पास है पार्ट एफ। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, देन 4/5 ऑफ अ लीटर। आपको लीटर में बताया है 1000 ml है, तो यहाँ पे आप 1000 लिखो, 1000 ml, और 5 को 1000 से डिवाइड करना है। तो आप पहले 2 ज़ीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 5 2 ज़ा 10, अब 2 ज़ीरो को याद करो, 200 आ गया। अब 4 को 200 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 200 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8, और लास्ट में 2 ज़ीरो, यानी कि 800 ml। आंसर आ गया आपका 800 ml। ओके, इसी का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना। 6/10 ऑफ 500 ml, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, आपको पता है, मैं बता चुका हूँ पहले आपको। अब 5 6 ज़ा 30, और एक ज़ीरो पीछे, 300, क्योंकि हमने 6 को 50 से मल्टीप्लाई करना था, 5 से नहीं। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 30 आया, और पीछे एक ज़ीरो भी है। आंसर है अब हमारा 300 ml। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप ज़रूर पूछें बिना हिचकिचाहट के। ठीक है, और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।